अब पेश है गुड मॉर्निंग J&K। برسوار 10 ستمبر 2015 مطابق 10 ربیع الاول 1487 ہجری گڈ مارننگ J&K پروگرامک صدروار شمار ہیت تہند میزبان تہندس خدمتس مز حاضر سانہ طرف کرتو وسہ ونج السلام علیکم قبول بہت تہند میزبان جاوید تو مے ست روزان آز اشفاق حافظ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اشفاق، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ طبیعت دعائے خیر، شکر ربس کن الحمدللہ۔ آج چونکہ ناظر محترم سب سے پہلے آپ لوگوں کی اور میں رجوع ہوتا ہوں، آپ میری طرف سے بھی پیار اور خلوص بڑا استقبال ہے اور دعا کرتا ہوں کہ آپ سبھی دیکھنے والے خوش و خرم ہوں گے، بصحت و سلامت ہوں گے، بخیر و عافیت ہوں گے اور اپنے زندگی کے نیک معاملات میں رواں دواں ہوں گے۔ ہم جب بھی صبح اسٹوڈیو آتے ہیں ہماری یہی مسرت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے کہ آپ سب سے ملاقات ہو اور اس ملاقات کے دوران یہ جو محبت ہے پروگرام کے ساتھ آپ سب کا لگاؤ ہے یہ بنا رہے۔ اور جب ہم اسٹوڈیو آتے ہیں تو ہمیں اپنے ساتھی کا بھی اور گیسٹ کا بھی بڑا انتظار ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب کے ہمارے جو ساتھی ہیں وہ آئے ہیں یا گیسٹ جو ہے کتنے بجے تک آئیں گے، یا پینل پر بیٹھے دوست ہیں وہ آ رہے ہیں، تو سب ایک دوسرے کے بارے میں دریافت کرتے رہتے ہیں۔ شک ہو رہا ہے مجھے کیا آپ کس چیز کی طرف؟ آج آپ ذرا سے لیٹ ہوئے تو مجھے پینل سے بھی ایون ہمارے جو دوست بیٹھے بتا رہے تھے شاید انہیں ڈاکٹر صاحب وزکین آج بھی پانے سنبھالوں، تو یہ دیر کیوں ہوا؟ دراصل میں بتاؤں آپ کو کہ پچھلے میرے خیال سے 4-5 دن سے بلکہ ایک ہفتے سے میں لڑ رہا ہوں۔ کس چیز کے ساتھ لڑ رہا ہوں؟ وقت کے ساتھ لڑ رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک۔ اور وقت کے ساتھ لڑ کے آج تک کوئی جیت نہیں پایا، لیکن ہم سب کوششیں کرتے ہیں کہ بس ہم وقت سے کہیں آگے چلے جائیں۔ دراصل پچھلے ایک ہفتے میں میرے خیال سے 5 جگہ دعوتوں کا انتظام تھا۔ ہاں، سپٹمبر کا مہینہ ہے، بالکل یہ شادیوں کا سیزن ہے اور جہاں جائیں گے وہ مسئلہ ہے کہ کب جائیں کب واپس آئیں۔ صحیح۔ اور دوسرا یہ کہ جہاں نہیں جائیں تمن کا سبب ملال تو کوشر ملال چھ بڑا صحیح مشہور۔ تو ان دنوں میں جب دعوتوں پہ جاتے ہیں اور جس چیز کی ہم قدر کرتے ہیں کہ ہم کوئی ہمیں بلائے تو اس چیز کی قدر کرتے ہیں اور جاتے ہیں وہاں پہ، لیکن یا چیز اہم چیز قدر کریں، اس چیز کی قدر جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے وہ ہے وقت، اور وقت کی قدر ہم کرنا بھول گئے ہیں۔ کارڈ پہ 2 بجے لکھ کے پھر 4 بجے 4:30 اگر کوئی دے کھانا تو مطلب غنیمت جانو، اور بارات کے ساتھ جانا ہو وہ تو اور بھی مسئلہ ہے، کیونکہ بارات ول ڈپارٹ ایٹ 8 یا 7 کیا چھ لکھا، تو اس کے بعد پھر 11 ساڑھے 11 کسی سے پوچھتے ہیں دماغ بس ہے کہ بس میں پاس 5 منٹ لگن بے، تو اس کے بعد 12 ساڑھے 12 اور پوری رات اسی میں بیت جاتی ہے۔ تو میرے ساتھ بھی کچھ معاملہ ایسا ہی ہوا پچھلے ایک ہفتے کے دوران، بالکل، اور 1-2 جگہ تو بارات کے ساتھ بھی جانا پڑا اس وجہ سے۔ پچو گسان یہ ونندر یوزن یہ آسان چھو سائیکل، یہ نندر ڈسٹرب گسان، ہاں یہ جو سلیپ سائیکل ہے یہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور اس کو سیٹ ہونے میں پھر کچھ دن لگ جاتے ہیں۔ آپ
यकीन माने कि मैं खुद तजब्जुब में था कि बवाता स्टूडियो क्यों की है, लेकिन इतना इत्मीनान था कि अशफाक हाफिज जो हमारे बरखुरदार हैं, हमारे छोटे भाई हैं, ये प्रोग्राम के दौरानिए को जो है वो संभाल पाएंगे अच्छे से। लेकिन अल्लाह ताला का फजल करम कि फिर वक्त ने साथ दिया हमारा, एक और मौका दिया और यहाँ पर आप पहुंचे हम, और इंतजार की घड़ी खत्म हो गई, और इंतजार की घड़ी। और साथ ही मैं ये भी अर्ज करता चलूं कि हमारे जो प्रोग्राम के हमारे जो साथी हैं, गुड मॉर्निंग फैमिली, गुड मॉर्निंग जेएंड के फैमिली के का एक फर्द है ताबिश भट्ट, उनका भी निकाह हो गया। उस वजह से आप ज्यादा देर हो गई? नहीं, उसकी वजह से नहीं, ताबिश के यहाँ जो वहाँ पे आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है, दावतों का जो इंतजाम था वो कदरे उन्होंने वक्त का ख्याल ही रखा। और वहाँ वो चूंकि हमसायगी का मामला है, ताबिश और मैं रहते एक जगह है आसपास, तो पूरा जो है हमारी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से ताबिश को बहुत बहुत मुबारक। और मौसम के क्या हाल हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल जहाँ शादियों का सिर्फ तो मौसम के बारे में पहले खबर होनी चाहिए। और तथ सत्य वनस यम जन किसान बॉय तम तनस अत दान और फसल सवर, और वो भी बड़ा खूब बता दें क्या जी मौसम के हवाले से और शहरों के हवाले से मैं अपने नाज़रीन तक खबर पहुंचाता हूँ। और श्रीनगर में मतला जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद रह सकता है। श्रीनगर का दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 16 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेल्सियस कम से कम 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का इम्कान है। जम्मू में आज मतलब अबर आलूद रहने का इम्कान है। और इसके साथ साथ किसानों के लिए ये एडवाइजरी थी कि 9 से लेकर 12 तारीख तक वो अपनी फसलों के साथ जो है वो फसलें काट सकते हैं, उस कारोबार में मशगूल रह सकते हैं। और ट्रैफिक के हवाले से आपको खबर दें कि ट्रैफिक कंट्रोल रूम से मिली इत्तला के मुताबिक आज श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर यानी 8वें रोज के बाद कल वहां पे ट्रायल दिया गया था कि छोटी गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई थी, मगर ताहम जो रोड है उसकी हालत खराब हुई और वहां पर जैम हुआ, उसकी वजह से पूरा दिन कल उसमें लगा। तो आज भी रोड की हालत देखकर ही छोटी गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जाएगी। छोटी गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर की ओर रवाना किया जाएगा। श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर छोटी और बड़ी गाड़ियों को रेगुलेटेड मैनर में पहले मिनीमर्ग से श्रीनगर, फिर सोनमर्ग से करगिल की ओर रवाना किया जाएगा। और मुगल रोड पर छोटी गाड़ियों को श्रीनगर से पुंछ की ओर और फिर जम्मू की ओर चलने की इजाजत दी गई है। माल बरदार गाड़ियों को शुपियां से पुंछ की ओर रवाना किया जाएगा। मजीद तफसीलात के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबिता कायम करना न भूलें। ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबरात आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अभी दस्तयाब है, बाद में स्क्रॉल भी होते हैं, और उसके साथ साथ आप सोशल मीडिया हैंडल से भी ये ताज़ा तरीन इत्तलात मौसूल कर सकते हैं। खैर, ये तो था ट्रैफिक और मौसम के हवाले से हालचाल। आप जानते हैं कि हम आप तक अखबार की सुर्खियां भी पहुंचाते, अपडेट्स भी पहुंचाना डॉक्टर साहब लाजमी है। बिल्कुल कि आप आगाज करें अपडेट्स का। जी बहुत शुक्रिया अशफाक। और मेरे हाथ में एक उर्दू रोजमा है जिसकी 2 सुर्खियां आप तक पहुंचाएंगे नाजरीन। सैलाबी सूरत हाल, बारिश और लैंडस्लाइडिंग से हुए नुकसानात का जायजा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जल्द ही जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। सैलाब मुतासरीन के लिए खुसूसी इमदादी पैकेज का भी ऐलान मुतवक्को है। और इसी अखबार की दूसरी सुर्खी है मसनूई जहानत, टेक्नोलॉजी और इख्तरा भारत की नमो की दास्तान को महमीज करेगी। नौजवान विकसित भारत 2047 की जानिब भारत की क़यादत करेंगे। पीयूष गोयल, मजबूती और अखलाक की क़यादत भारत की कामयाबी की कलीद है, कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील बर्थवाल। मेरे हाथ में उर्दू रोजनामा है, चंद खबरें इस अखबार से। अखबार लिखता है कौमी शाहरा के हवाले से खबर है, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर 8 रोज बाद आमदरफ्त जुजवी तौर पर बहाल। हल्की गाड़ियों को आजमाइशी बुनियादों पर चलने की इजाजत। दिन भर हल्की बशमूल मुसाफिर गाड़ियों की आवाजाही बगैर किसी रुकावट के जारी। मालबरदार गाड़ियों की आमदरफ्त की बहाली का फैसला बाद में किया जाएगा, हुकाम। एक और खबर इस अखबार से, जम्मू श्रीनगर शाहरा की तवील बंदिश के असरात। कश्मीर की ताजिर बरादरी को बड़े पैमाने पर कारोबारी नुकसान का सामना। बाजारों में अशियाई ज़रूरिया की काफ़ी किल्लत, कीमतों में मुतवातिर इजाफा। ज़रूरी सामान की सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए ट्रेन सर्विस चलाने का मुतालबा। जी डॉक्टर साहब। एक अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में, इसकी सुर्खी है हाई कोर्ट कॉल्स फॉर अ रोड मैप टू कर्ब मीनेस ऑफ अनसेफ फूड इन J&K। इसी अखबार की एक और सुर्खी है स्कूल्स रिओपन इन जम्मू आफ्टर फोर्टनाइट लॉन्ग क्लोजर। और जज जो हैं श्रीनगर के सिटी जज जो हैं अब्दुल बारी, उनके हवाले से खबर है कि मैन गेट्स ईयर लॉन्ग जेल इन चेक बाउंस केस। जी मेरे हाथ में एक उर्दू रोजनामा है, इससे एक खबर लेते हैं, चंद खबरें लेते हैं। अखबार इस तरह से रकम तराज है। मजमूई तौर पर 12,000 हेक्टेयर ज़रई अराजी में सैलाबी पानी घुस गया। श्रीनगर, पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग और बडगाम अजला ज्यादा मुतासिर। धान, मक्की और सब्जियां तबाह। एक और खबर इसी अखबार से, कबल अज़ वक्त सोनमर्ग में 2 बार
हल्की बर्फबारी। जी डॉक्टर साहब। एक अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में अखबार लिखता है, फेक न्यूज सीरियस थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर, डेमोक्रेसी पैनल कॉल्स फॉर फैक्ट चेकिंग ओम्बड्समैन इन ऑल मीडिया। जी उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में अखबार इस तरह से लिखता है, हुकूमत खालिस पश्मीना को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पुरअज़म। मरकजी सेक्रेटरी टेक्सटाइल्स ने स्कॉस्ट कश्मीर शहामा में एनिमल फाइबर क्वालिटी एसोसिएशन एनिमल क्वालिटी फाइबर एश्योरेंस लेबॉरेटरी का इफ्तिताह किया। माजरत खाऊं नाज़रीन मोहतरम, एक और खबर इसी अखबार से, कंगन में कायम 2 रेस्टोरेंट और 1 ढाबे का लाइसेंस मुअत्तल, खाने के नमूने लेबॉरेटरी टेस्टिंग के दौरान गैर मयारी, फूड एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। फूड इंस्पेक्टर। जी एक अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में, इसके बॉटम स्प्लिट में एक तज्जिया शाया हुआ है, absenteeism crisis in school due to private coaching centers has led to deep crisis, needs immediate corrective measures in Kashmir. जी, ये स्कूलों में बहुत कम अभी देखा जा रहा है ये मामला। जी एक और खबर इसी अखबार, एक और आखिरी अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में, इस सेगमेंट की आखिरी खबर लेते हैं। अखबार कुछ इस तरह से लिखता है, चीफ सेक्रेटरी ने यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी के साथ सेहत के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया। और जी डॉक्टर साहब हो गया जी। और एक आखिरी अखबार मेरे हाथ में और के स्पोर्ट्स पेज पे खबर है, कश्मीर एवेंजर्स क्रश महाराजा FC 8-1 इन श्रीनगर फुटबॉल लीग। और क्रिकेट शायकीन के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि आज से बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में जो शुरू हो रहा है रेड प्रीमियर लीग, जिसमें काफ़ी सारी बड़ी टीमें जो हैं वो नंबर आजमा होंगे एक दूसरे के खिलाफ, और वहाँ पर जो है क्रिकेट शायकीन के लिए बड़ी दिलचस्पी का मरकज़ बनने वाला है बख्शी स्टेडियम। आज उसकी जो इनॉग्रेशन है वो भी होगी और पहला मैच भी आज खेला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और हमारे नाज़रीन को इंतज़ार होगा कि हम उन्हें मेहमान से मुलाकात कराएं, पर इस तजस्सुस को ज़रा देर के लिए महफूज रखते हैं। यहाँ पे एक वक्फे के लिए रुकते हैं और उसके बाद जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और वक्त हो चला कि हम आपकी मुलाकात आज की मेहमान शख्सियत से कराएं। एक आजकल बड़े मुतबरक दिन चल रहे हैं, रबीउल अव्वल के दिन चल रहे हैं, और हाल ही में चंद रोज़ कबल ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़रीब सईद मनाई गई। कल फॉलोइंग फ्राइडे है और इस हफ्ते हमने मनाया टीचर्स डे भी, यौम उसातिज़ा। आज हमने सोचा कि ऐसे मेहमान को मदऊ किया जाए जिनका ताल्लुक़ दोनों जो मौज़ूआत हैं दोनों से हो, और आज हमारी थोड़ी सी रहनुमाई करें और नसीहतें करें, तालीम के हवाले से बात हो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के हवाले से भी बात हो। आज हमने मदऊ किया है प्रोफेसर डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन यत्तू साहब को। यत्तू साहब हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इस्लामिक स्टडीज़ के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला में शायद, तो वहाँ पे ये अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत प्रोग्राम में इस्तकबाल हम करते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी दावत कबूल करने के लिए। डिग्री कॉलेज चुनाव गवर्नमेंट मस्जिद का कुछ चुताएं क्या चुताएं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोगाम तो तुहन छु वस वंज प्रोग्रामस मज इस्तकबाल तो छु गलबन गडनिक फिर आमद गुड मॉर्निंग JNK प्रोग्रामस मज, तो इसलिए यह सब थोड़ा सा कि तारुफी कलमातन मज कि तो कत छु रोजान गैर तो तालीम तरबियत सिलसिला कित कन रूद तो इस्लामिक स्टडीज सत क्या रोज ये जन ये तय अत सत गई तुम मुंसलक तो अत क्या महरकात औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका फराहम किया यहाँ पर आने का, बात करने का। मेरा ताल्लुक़ ज़िले बारामूला के एक गांव से है, गोशबुग, जो शुमाली कश्मीर में आता है, पटन, गोशबुग पटन। बिल्कुल। तो वहीं मेरा आबाई गांव है, वहीं पर मेरी तालीम और तरबियत हुई है जी। इब्तदाई तालीम मेरी वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में हुई और मैट्रिक तक, 10वीं तक। उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल पट्टन में मैंने 12वीं जमात पास की। उसके बाद मेरी नॉन मेडिकल साइंस में ग्रेजुएशन हुई जी। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोपोर में। उसके बाद मैंने पीजी इस्लामिक स्टडीज़ किया शाहमदान इंस्टीट्यूट इस्लामिक स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में। और उसके बाद मैंने जामिया इस्लामिया दिल्ली से पीएचडी की डिग्री हासिल की इस्लामिक स्टडीज़ में। जी। लेकिन इससे पहले मेरा नॉन मेडिकल यानी मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट से ही ग्रेजुएशन तक। तो इब्तदाई तालीम का जहाँ तक ताल्लुक़ है, दरअसल चूँकि जैसे कि आपने तारुफ में कहा कि ये निस्बत जो एक मुसलमान को होती है, लेकिन इल्म इस्लामी से, इस्लामी तालीमात से जो निस्बत कायम हुई, इसका सिलसिला में फिर से जोड़ूंगा उसी आबाई गांव से, जहाँ पर आज भी होते हैं मुख्तलिफ इलाकों में सबाई और शबीना दरसगाहें होती हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पर हमारा तारुफ हुआ या हमारा ताल्लुक़ जुड़ा कुरान मुक़द्दस की तालीम के साथ। माशाअल्लाह। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे इब्तदाई मदरसे में या स्कूल में जो असातिज़ा थे, वो भी साथ साथ आप जानते होंगे कि उस ज़माने में दीनियात पढ़ाई जाती थी हमारे गवर्नमेंट स्कूल में। ठीक। तो वहाँ भी तारुफ मिला था। और असातिज़ा जो थे वो बड़े आला पाए के असातिज़ा हुआ करते थे, जो बचपन में ही है, छोटी उम्र में ही इंसान को बड़ा विजन देते थे। तो मैं अपने इब्तदाई उस्ताद, बिल्कुल जिसने मेरा नाम भी लिखा है, मुमकिन है मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ होता या अल्ताफ़ अहमद होता, सही, लेकिन उन्होंने, मुझे याद है, सरकंडे की कलम, नरकन कलम जो तुमो गिरत, यानी उसकी नोक उन्होंने तेज़ की। ठीक। चूँकि ये जो इब्तदाई उम्र में जो वाक़ात होते हैं, भले अगर वो छोटे भी हों, नक्श रहते हैं ज़हन में, वो तख्लीकी उम्र होती है, क्रिएटिव एज। सही। तो वो नक्श होते हैं, वो उनका उस कलम की नोक को तेज़ करना मुझे आज भी याद है। और सरकंडे का कलम, हमारे हमसाया गांव है, एक गांव है अंदर गांव उसको कहते हैं, तो उसको आज भी असातिज़ा का गांव कहा जाता है। तो वहीं पर थे सरसैद टोपी लगाकर, मुझे आज भी याद है, हाजी गुलाम मोहम्मद साहब। तो वो असातिज़ा, उनकी जो शबीह होती थी, उनकी जो शक्ल सूरत होती थी, उनका जो शागिर्द को शेप करने का, मोल्ड करने का जो अंदाज होता था, वो बिल्कुल इंसान को इस चीज़ पर सोचने के लिए तैयार करता था कि हमें आगे जाना है। मिसाल के तौर पर एक और उस्ताद थे हमारे जी, शेख गुलाम मोहिद्दीन पलहालन के। तो वो बचपन में हमें असेंबली पर प्रेयर, जो दुआ, यानी यहाँ पर प्रेयर की बात भी करेंगे कि प्रेयर एक पूरे स्कूल की, पूरे दिन की कार्रवाई का एक नक्शा होता है। बहुत ये असल में जो आपने वजह फरमाया कि ये जो नक्श, वो जो उस्ताद का जो रुतबा है, उस्ताद की जो शबी होती है, उनकी जो शख्सियत होती है, वो बाअसर होती है, और उस का असर वही लेते हैं जो उस्ताद की जो अहमियत है उसको समझते हैं। एक वक्फे के लिए नाज़रीन हम यहाँ पे रुकेंगे, वक्फे के उस पार आएंगे तो आज के हमारे जो ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन यत्तू साहब, इनके साथ सिलसिला कलाम जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग JNK। कश्मीरी GI लेबल मसनूआत की QR कोड की ऑथेंटिकेशन के साथ पेशकश है
फनकाराना दस्तकारी से तैयार करदा हर एक मसनूआत जो कश्मीर की दस्तकाराना तहजीबी पस मंजर की कहानी बयान करती है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि आपके सामने कश्मीरी फन का हकीकी जौहर ही है, एक लम्हा निकालें और अपने प्रोडक्ट पर QR कोड स्कैन करें। आपकी खरीदारी की सदाकत की तौसीक करने से आपको ये एतमाद मिलता है कि ये एक हकीकी कश्मीरी GI लेबल वाला शाहकार है। जी नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और आज जो ख़ास मेहमान हमारे स्टूडियो में मदऊ किए हैं ये असिस्टेंट प्रोफेसर इस्लामिक स्टडीज़ GDC सुगाम जनाब डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन यत्तू साहब। डॉक्टर साहब तो यूजनी मेमोरी हज कत कर चूँकि किस्मतन यो आबई इलाकुन ये और जो डॉक्टर साहब इन्होंने टीचर्स का नाम लिया, अक्सर मतलब हमारे इलाके में उन टीचर्स का नाम वैसे भी लिया जाता है जिनका नाम वाकई में है और पत अथ उस्ताद पेशस से तुह वाबस्त गन चूँकि तुह गो नॉन मेडिकल पत इस्लामिक स्टडीज मज पत अथ उस्ताद पेशस से टच कर यह गोड़ पे प्लान बनित कि मे अमे वत गन कि यह गो पत बाई चांस। अत सवालस दिम बह जवाब इत पे कि कुन सात वन कस शख्सियतस मुतलिक या तम सुंद उस्ताद वन या तम सुंद दोस्त वन यह सेल्फ मेड खुद बनाया मगर बहस मुसलमान तो बहस यानी अके लोअर सतह पे आमुत इंसान बनान कि बह हेक पानस सेल्फ मेड वनित की गॉड मेड आसान खुदा बनाया वाकई। यानी जो मैंने अभी बात की कि कलम की नोक तेज करने की, ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं। एक कहावत है गो अप गो डाउन बट नेवर गिव अप। तो ये उसमें उस कलम की नोक से ही जोड़ूंगा कि वो कलम की नोक कभी कुंद भी होती है लेकिन फिर यही उस्ताद उसको तेज कर देता है, उसकी धार बना देते हैं, धार बनाते। तो वाक़ा ये हुआ कि मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो हमारे इलाके में मुझे उनका तारुफ नहीं था। एक उस्ताद अक्सर इल्मी महफिलों में या कभी मजहबी महफिलें भी होती थी उनमें बयान देते थे, लेक्चर देते थे। तो एक लेक्चर मैंने सुना हमारी आबाई बस्ती हमसाया बस्ती है एक सुल्तानपुरा, वहाँ पर एक प्रोफेसर ने एक बयान दिया। तो मैंने ये बयान सुना और इस बयान के बाद मैंने मालूम किया ये जिन्हें बयान दिया ये कौन थे। तो मालूम हुआ, मैंने कहा ये इनका पेशा क्या है, कहा कि ये शाह हमदान इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ में प्रोफेसर है। तो जहन में आया कि क्यों न मैं ग्रेजुएशन के बाद इसी इस्लामिक स्टडीज़ की तरफ जाऊँ। तो यहाँ पर मेरा रुख हुआ शाह हमदान इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ की तरफ। तो फिर वहाँ पर इंस्पायरेशन मिली यानी आगे बढ़ने की। इस शाह हमदान इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ के बारे में मैं एक बात यहाँ अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ कि एक तो होता है पढ़ाना, दूसरा होता है इल्म का माहौल फराहम करना। दुरुस्त। जहाँ पर इंसान एग्री करे बड़ी चीज़ों पर, बड़ी थॉट्स पर और डिसएग्री भी कर सके, और जहाँ पर सवाल करने के लिए इंसान को इंस्पायर किया जाए, इनकरेज किया जाए। यहाँ पर मुझे सवाल पर एक मक़ूला याद आता है, हुस्न सवाल निस्फुल इल्म। यानी अगर आप अच्छा सवाल करेंगे तो वो आधा इल्म है, निस्फ इल्म आपने हासिल कर लिया। बल्कि इससे भी पहले एक मक़ूला है ला अदरी निस्फुल इल्म, यानी ये कहना कि मैं नहीं जानता हूँ ये भी निस्फ इल्म है। बिकॉज फिलोसफिकली आपको ये इल्म है, आपको इस चीज़ का इल्म है कि मैं नहीं जानता हूँ, यानी ये निस्फ इल्म है। जब आपको ये पता चला फिर आप सवाल करेंगे। तो शाह हमदान इंस्टीट्यूट में इस सवाल करने के लिए हमें उबारा जाता था। मुझे याद आता है कि ये महफिलें बिल्कुल हर एक डिपार्टमेंट में अपने हिसाब से होती होंगी, लेकिन मैं इसका तकाबुल कर सकता हूँ कि हमारे तारीख में बड़े बड़े बादशाहों के वो दरबार होते थे, वो पैटर्नाइज करते थे स्कॉलर्स को। जैसे हमारी तारीख में एक सैफुद्दौला यानी हलब एलेप्पो में एक कोर्ट रहा था, वहाँ पर तुर्क,
अरब और पर्शियंस एक साथ डिबेट करते थे, वो एग्री भी करते थे, डिसएग्री भी करते थे। इससे क्या होता था, इल्म को तहरीक मिलती थी। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ इस्लामी दुनिया में था ऐसा होता था, नहीं, बल्कि एक राइटर हैं लुई मेसिनॉन जी, फ्रेंच, उन्होंने पैशन ऑफ हल्लाज में लिखा है, यानी मंसूर हल्लाज पर उन्होंने लिखा है। उन्हें उनके असफार पर बात की है, यानी मंसूर हल्लाज ने सफ़र कौन से किए। उनका कहना है कि उन्होंने एक सफ़र कश्मीर का भी किया है। तो फिर वो लिखते हैं कि उस ज़माने में यहाँ पर अवंती वर्मन और शंकर वर्मन के ज़माने में जी, बड़े बड़े डिबेट्स होते थे। किस पर? मज़हब तो हिंदुइज्म यहाँ पर था, लेकिन तौरात पर, इंजील पर, ज़बूर पर तबसरे होते थे। और उनके मुताबिक मुमकिन है उन डिबेट्स में मंसूर अल हल्लाज ने भी हिस्सा लिया। मुझे कहना था कि ये जो सवाल करना इल्मी माहौल, तो ऐसी महफिलें जब होती हैं, ऐसा माहौल जब आपको फराहम होता है, तो उसमें आपकी रग़बत फिर से हासिल यानी बढ़ जाती है आपकी, आप फिर से ट्रैक पर आ जाते हैं। वाकई वही जो मैंने कहा, जो कलम की नोक जो कभी कुंद हो जाती है वो फिर से तेज हो जाती है और वो चलने लगती है। उसके बाद आप जामिया मिलिया भी गए, और वहाँ से जो आपकी पहली पोस्टिंग है कौन से इलाके में हुई थी? जामिया मिलिया में दरअसल मैंने PhD क्या उस टाइम मौजू इस्लामिक स्टडी? हाँ, मेरा मौजू असल में मैं जब जामिया मिलिया इस्लामिया गया तो मेरे जहन में एक मंसूबा था मेरा, प्लान था मेरा जी, कि ये जो दावती तहरीकें हैं तो इन पर थोड़ा तहकीक की जाए। तो यहाँ से मैंने सिनॉप्सिस अपने हिसाब से तैयार करके ली थी, लेकिन वहाँ पर एक मशवरा दिया गया मुझे। वहाँ पर भी एक बहुत बड़े प्रोफेसर है, प्रोफेसर अख्तरुल वासी, पद्मश्री हैं वो जी। तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप सूफिया किराम पर काम कीजिए। हालांकि मैंने उनसे कहा कि मोहतरम इन पर काम होता रहता है, मैं तो दावत पर ही काम करना चाहता था, लेकिन उन्हें मुझे समझाया। और फिर एक बात जो मेरे दिल को लगी बहसियत कश्मीरी होने की, उन्हें कहा कि आप चराइर शरीफ वाले को जानते हैं? मैंने कहा जो चराइर शरीफ वाले को न जाने वो कश्मीरी नहीं हो सकता, यानी शेख नूरुद्दीन रहमतुल्लाह। तो फिर मैंने यही मौजू चुना, यानी इन सूफिया किराम का रूहानियत, यहाँ की रूहानियत में और इसको आगे बढ़ाने में, ज़ुहद की जो तारीख थी यहाँ पर उसको आगे बढ़ाने में जी कौन सा किरदार रहा है। तो इस पर मैंने तहकीक की अपने हिसाब से। आपसे जो बातचीत है, मज़ीद भी बहुत बातें होंगी, सवालात भी हमारे जहन में, जो कि आपका पेशा जो है फिर यहाँ टीचिंग वाला प्रोफेशन चुनना, और माशाल्लाह आप अभी खूबसूरत इलाके में सुगाम में अभी तैनात है, तो वहाँ का भी सुनेंगे। और उसके बाद लिखने का जो शौक़ है ये कैसे बेदार हुआ ये भी सुनेंगे, लेकिन उससे कबल कुछ जिम्मेदारियाँ। एक वक्फे के लिए नाज़रीन मोहतरम यहाँ पे रुकते हैं और ये कारआमद गुफ्तगू है, उस वक्फे के बाद जारी रहेगी। देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जी नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। आज के जो खास मेहमान हमने स्टूडियो में मदऊ किए हैं डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन यत्तू साहब। ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इस्लामिक स्टडीज़ और इस वक्त अपने फ़राइज़ अंजाम JDC सुगाम में दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारी चीज़ों का जिक्र हम कर रहे हैं। मैं चाहता था कि मैं आपसे ये सुनूं कि जब आप जामिया मिलिया से फ़ारिग होकर आए, आप यहाँ पे तैनात हुए, उसके बाद ये लिखने का शौक़ और पहली तैनाती, चूँकि आप कश्मीर में अलग अलग जगहों पर आपने पढ़ाने का काम है, इस पर ज़रा थोड़ा बहुत बताएँ और उसके बाद हम कुछ और भी बातें करें। जहाँ तक लिखने का ताल्लुक़ है, यहाँ पर मुझे एक मक़ौला याद आ रहा है एक थिंकर का जी, कि उनसे कहा गया कि किसी शागिर्द ने पूछा कि मैं कब लिखूं, तो उन्होंने कहा कि आप इतना पढ़ें कि फिर आप उगलने लगो। तो वजह यही है कि बहुत देर तक मैं कुछ लिख नहीं पा रहा था,
تو جب پی ایچ ڈی کر کے میں آیا تو اس کے بھی 3 سال بعد میں نے لکھنا شروع کیا. تو اس میں نے پہلے جو اسی تحقیق کے جو مشمولات تھے اس میں جو کچھ چیپٹرز تھے ان کو میں نے پبلش کروایا، ایڈٹ کیا، پھر پبلش کیا. تو اسی میں ہے یہ جو صوفیاء کرام کا رول ہے، تو پہلی کتاب اسی کی ہے، دی اسلامائزیشن آف کشمیر. تو اسی میں ایک چیپٹر الگ سے میں نے چھپایا شیخ نور الدین پر، جو چیپٹر ہے وہ خصوصی ایک ان پر ہے، ان کے خلفاء وغیرہ پر. تو اس کے ساتھ ساتھ دعوتی تحریکوں پر بھی ایک کتاب ہے، وہ الگ سے کتابیں ہیں آپ کے سامنے. جہاں تک ان کتابوں کا تعلق ہے، یہ دراصل میرا سفر ہے انگریزی سے اردو کی طرف. یہ جو ہے تجلیاتی معرفت. تجلیاتی معرفت. آپ پہلے انگریزی میں لکھتے تھے کہ؟ بالکل، اس وقت بھی میں انگریزی میں لکھتا ہوں، لیکن ایک استاد ملے مجھے ڈگری کالج ٹنگڈار میں، جی، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں. پھر چند اساتذہ نے یہ کتاب یزن ہے تجلیاتی معرفت، ات مز کم کم موضوعات چھ من متعلق لکھمت چھو. دراصل ات مز معرفت یعنی جو علم کا سلسلہ ہمیں پیغمبران کرام علیہ السلام سے ملتا ہے، اس سے یہ شروع کیا گیا ہے. پھر اسی سلسلے میں باقی آتے ہیں، اس میں علماء اس میں آ جاتے ہیں، صوفیاء کرام اس میں آ جاتے ہیں، جیسے شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ پر بھی اس میں مضامین ہیں، میر صلی حمدانی پر بھی اس میں مضامین ہیں. جیسے ایک مضمون ہے اس میں میر صلی حمدانی کشمیر میں روحانیت کے نقیب. تو اسی طرح سے شیخ نور الدین پر زہد کے حوالے سے، تصوف کے حوالے سے اس میں مضامین ہیں. یعنی وہ جو آپ کا پی ایچ ڈی کا وہ جو صوفیانہ دور تھا اس لحاظ سے آپ نے اس لحاظ سے بالکل، لیکن اس کو میں نے اب اردو قالب دیا. اس سے وہ ایک اور کتاب اور یہ دوسری ایک کتاب جو ہے اقبال اور ثقافت ہند، یہ ڈاکٹر چمن لال رینا کی جو کتاب ہے اس کا آپ نے ترجمہ کیا ہے، اردو ترجمہ کیا ہے. اور اس کا میں ایک صفحہ بھی پلٹ رہا تھا کہ خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، زمین و آسمان و کرسی و عرش، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی. یہ جو کتاب ہے اس کا ترجمہ کرنے کا کیسے خیال آیا؟ اور دراصل یہ جیسے کہ آپ اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر چمن لال رینا، وہ کشمیری ایک استاد رہے ہیں، پروفیسر رہے ہیں اقبال انسٹیٹیوٹ میں. جی، تو ان کی یہ کتاب ہے اصل میں اقبال اینڈ انڈین ہیریٹیج. وہ انہوں نے آل احمد سرور کے دور میں لکھی تھی. وہاں پر ایک پروجیکٹ ان کو دیا گیا تھا. تو وہاں پر جو سابقہ کنوینر تھے ڈاکٹر مشتاق احمد صاحب، جی، تو انہوں نے یہ پروجیکٹ مجھے دیا اور اس کو میں نے ترجمہ کیا. اس کے بعد اس نام سے اقبال اور ثقافت ہند. اصل میں یہ کتاب ہے اقبال اینڈ انڈین ہیریٹیج. جو اب پروفیسر ہیں وہ ڈاکٹر چمن لال رینا یو ایس اے میں، تو وہاں پر بھی وہ یہ جو کشمیر کی ہیریٹیج ہے اس کے حوالے سے وہ کام کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب تنش سو اخ لکت زان کہ چونکہ یہ زن تہد سبجیکٹ سہ دین، دینس متعلق اور تقابلی ادیان کا بھی اس میں ذکر ہوتا ہے. وہ آپ نے پڑھا. پیشہ آپ نے وہ چنا جسے پیغمبرانہ پیشہ کہا جاتا ہے، اور امتی آپ اس پیغمبر کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں، اور سب سے بڑے استاد ہمارے لیے جو اس وقت ثنا چھوڑ کے گئے، ان چیزوں کی رہنمائی ہر ایک سطح پہ ہماری رہنمائی ہو رہی ہے. تو ان سب کے اور اس وقت جو متبرک ایام بھی چل رہے ہیں ربیع الاول کے، تو آپ بحیثیت استاد کس قدر مطمئن ہیں کہ یہ جو پیغمبرانہ پیشہ ہے اس کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے، اور جو اس وقت ہمارا علمی سفر ہے وہ اس کی اگر آپ کو کہیں کہ آپ دیو نظرہ تو یہ وچھو تہندس حسابس کتابس من تہذ نظر من کیا چھ تۄہہِ باسان کہ سون زن ونکینک علمی میدانس من سون دیت چھ یا سون پکن چھ سون سفر چھ ات متعلق ورنتو تھوڑا بہت. چونکہ ایام چل رہے ہیں ربیع الاول کے، اس حوالے سے ہم یہاں سے اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل معلم، انہوں نے خود کو باعث معلمہ، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. تعلیم کیا وہ دیتے تھے، بلکہ اس کا ذکر قرآن میں بار بار کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بحیثیت معلم. ایک تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، دوسرا اس کا ذکر قرآن میں بار بار ہوا ہے
यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, यानी वो तज़किया करते थे लेकिन आयात कुरानी के ज़रिए, यानी तज़किया का कोई मिस्टीरियस कोई तरीक़ेकार नहीं है, बल्कि ये तज़किया यानी सफाई पाकीज़गी हासिल होती है कुरान की आयत के ज़रिए से ही। और फिर ये जो डूज़ एंड डू नॉट्स है, यानी कौन सी चीज़ें करने की है, कौन सी चीज़ें छोड़ने की है, ये भी वो सिखाते हैं। और आखिर पर जो अल्टीमेट गोल जो है वयुअल्लिमुल किताब वल हिकमा, हिकमत की वो तालीम देते हैं, दानाई की वो तालीम देखे। इसको हम फ़लसफ़े की यानी मानी में नहीं लेंगे, बल्कि आम जो दानाई है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशा है। और दानाई का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हिकमत का ताल्लुक़ जहाँ तक है, ये दरअसल काम करने की वो सलाहियत है, बल्कि कुरान में इसको नूर भी कहा गया है कि आप उस तरह से दुनिया में गुज़र बसर करें, अपनी ज़िंदगी गुजारें, ताकि आप एक बुरहान पर, आप एक दलील पर कायम हो, उस हिसाब से आप हर पेशे में, हर फील्ड में काम कर सकें। जहाँ तक ये पेशा है तालीम ताल्लुम का, तो इसमें ज़रूर यही है कि उस्ताद जो है वो अपने प्रोफेशन के साथ अपना पैशन शामिल करे, यानी उसको ये मानकर चलना है कि मैं एक उस्ताद हूँ, और उस्ताद को क्या करना है, उसको रोज़ सीखना है, तभी वो अपने इस पेशे के साथ इंसाफ कर सकता है। यानी ही शुड बी ए स्टूडेंट, ही और शी शुड बी ए स्टूडेंट ऑलवेज, यानी तमिस पज हमेशा हेचुन। तो हेचन सिर्फ किताबों पे की, बल्कि सह पन्नस माहौलस पे हेचान, सह पन्न बुजुर्गन नश हेचान, बल्कि सह उन बच्चन नश हेचान यम तस क्लास में आसान। तो पत आसान तथ मजमूई तौर पर युस जन सोसाइटी में रिवायत बनेमच, तो यह फुटरावन की, बल्कि अत वुचन कमी कतनसन तथ भरपाई करनिच जरूरत, सो कमी दूर करनिच जरूरत। यानी वन इट टेक्स ए हिस्ट्री टू मेक ए लिटिल ट्रेडिशन, इट टेक्स मोमेंट्स टू ब्रेक इट, यानी रिवायत फुटरावन की, यानी कह वन बह कर इत पट रिवायतन हट कर, रिवायत मजबूत करनिच जरूरत आसान अमिस उस्तादस, तो मगर तमिस हमेशा रोजन तेल स्टूडेंट। मगर ये कथ गई अत शामिल आसन, चूँकि हमारी एक मजहबी और सकाफती जो हमारा पस मंज़र है, इसमें जो अभी कहा कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम था, इसमें पाकीज़गी शामिल है, यानी पेशे में हर तरह से पाकीज़गी भी होनी चाहिए। पाकीज़गी सिर्फ यही नहीं होती बदन की पाकीज़गी, बल्कि ख्यालात की पाकीज़गी, एहसासात की पाकीज़गी, उठने बैठने की पाकीज़गी। तो इसी को फिर यानी एक नूर से, यानी कुरान में इससे नूर से तजवीज़ दी गई है कि आप एक दलील पर फिर चलते हुए, जो उस्ताद होता है ये एक दलील पर कायम होता है, क्योंकि इसको नेशन को बिल्ड करना होता है। लेकिन बल्कि फिर यहाँ पर उस्ताद को खुद को भी बिल्ड करने की ज़रूरत होती है। इस सिलसिले में मैंने असातिज़ा के यौम असातिज़ा पर एक मजमून भी लिखा था, हाउ टू बिल्ड टीचर्स, वो राइजिंग कश्मीर में आया था। तो इसमें मैंने यही दिखाने की कोशिश की है कि नेशन तो असातिज़ा बिल्ड करते ही हैं, लेकिन इनको असातिज़ा को, यानी हमको साथ साथ खुद को बिल्ड करने की ज़रूरत है। यानी जब तक हम खुद को बिल्ड करते रहेंगे तो सोसाइटी जो हो बिल्ड होती रहेगी। यमन वस्तादन निश तह पर्व तो यन पे तह लोगो परना, अगर अस करो ना अत पानवन कंपेयर, तह क्या बसान कि यह जन इल्मिच तशनीगी सह बढ़े, तम जन उस्तादन हिंद रोल या उस्तादन हुंद रुतबु स्टूडेंटन हिंदन नजरन मज, या क्लास रूम एटमॉस्फेयर यम जन गई चेंज, चूंकि वन आव टेक्नोलॉजी हुंद दौर, इन दोन तह इब्तदाई तालीम हासिल कर, तिमन दोन यम मोबाइल त्रई तो टेलीफोन लाइन तन तिमन दोहन ज्यादा की। तो किस तरीके से इस ट्रांजिशन को आप देख पा रहे हैं, और क्या ये हेल्दी ट्रेंड है? जहाँ तक तकाबुल है पुराने उसातिज़ा का और आजकल के उसातिज़ा का, तो असल में सोसाइटी हमेशा इवॉल्व होती रहती है। सही। अगर हम ये कहें कि पुराने उसातिज़ा इतने बहुत अजीम थे, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो ये तकाबुल करते हुए हम आज के असातिज़ा के दर्जे को घटा देंगे, वो सही नहीं है। बल्कि हमें ये जहन में रखना है कि सोसाइटी इवॉल्व होती रहती है, इसमें कई नई चीज़ें आती रहती है, उनको हमें यानी ये एम्ब्रेस करना है, नई चीज़ों को हमें एम्ब्रेस करना। मिसाल के तौर पर अगर उस वक़्त का उस्ताद कहानी के ज़रिए से कोई चीज़ हासिल करता था, आज वो डिजिटली हमारे
सामने अवेलेबल है। तो इसको हमें मनफी अंदाज में नहीं देखना चाहिए, इसको हमें पॉजिटिव अंदाज में लेने चाहिए। लेकिन जो अक़दार उनकी थी, जिन पर वो असातिज़ा जमे हुए थे, उन अक़दार की तरफ उनको फिर से स्टडी करने की ज़रूरत है। क्यों वो यानी रिज़ल्ट देते थे, रिज़ल्ट नहीं वो रिज़ल्ट जो पास फेल वही रिज़ल्ट नहीं, बल्कि वो सोसाइटी को किस तरह वो कंट्रीब्यूट करते थे, इसको नए असातिज़ा को यानी हमको स्टडी करने की ज़रूरत है कि वो क्यों सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे थे, क्या हम उतना कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन तकाबुल जब भी किया जाएगा ये मस्बत अंदाज में किया जाए। अगर मनफी अंदाज में किया जाएगा कि पुराने उसातिज़ा ही सब कुछ थे, अजीम तो थे वे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आज यानी सोसाइटी इवॉल्व हुई है, सोसाइटी ने तरक्की की है, कई सीखने की सिखाने की नई चीज़ें भी शामिल हो गई है, यानी पेडागोजी मनहजी तालीम जिसको कहते हैं वो नया आया है। तो इसमें इसको भी एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है, इसके साथ चलने की ज़रूरत है। अच्छा, बच्चे के लिहाज से एक चीज़ अगर हम देखें, चूँकि एक उस्ताद का इंतखाब करना या सही उस्ताद होना एक बच्चे के लिए वाकई आज के दौर में कितना लाजमी है। मिसाल के तौर पे अगर आपको मैं बता दूं, हमारे सामने ये कप है, किसी शख्स, हमारे लिए तो ये पहले मिट्टी थी, लेकिन किसी शख्स ने वाकई सोचा कि इसको कप बना सकते हैं और किस तरीके से, किस हुनरमंदी से बनाया जा सकता है, ये वो शख्स वाकई में फिर इसमें कामयाब हो गया। इसी तरीके से एक बच्चे के लिए एक रॉ इंसान आपके पास आना और उस्ताद का सही से उसका चुनना, ये कितना एक बच्चे के लिए भी ज़रूरी है, एक उस्ताद के लिए भी कितनी जिम्मेदारी है कि वो वाकई में उससे वही निकाले ताकि वो बच्चा अपनी सही राह पे हामिल हो सके। यहाँ पर मैं मौला रूमी की जो पेडागोजी रही है, मनहज तालीम जो रहा है, तो उसकी तरफ मैं इशारा दूंगा तो ताकि इसमें जवाब भी आ जाए जी। असल मौला रूमी भी इल्म की महफिलें कायम करते थे, उनकी महफिलों में हर तरह के लोग शामिल होते थे, जैसे सब्जी फरोश भी होता था, यानी तबाग भी होता था, हर पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उनकी महफिल में शामिल होते थे जी। तो फिर वो कहते हैं कि आप मिसाल के तौर पर टीचर को सिखाना है एक कंसेप्ट, मिसाल के तौर पर मोहब्बत का कंसेप्ट सिखाना है इनको जी। वो कहते हैं कि इब्तिदाई तालीम में हम इस बच्चे को सिखाएंगे कि मोहब्बत शक्कर जैसी है, मोहब्बत शक्कर जैसी है, यानी मीठी है। बच्चा समझ जाएगा कि मोहब्बत शक्कर जैसी है, कि जैसे शक्कर होती है वैसी मोहब्बत होती है। क्योंकि मौलाना रूमी ने दूसरी जगह कहा कि ये कौन मकान जो है ये मोहब्बत पर ही कायम है। लेकिन वो कहते हैं यही कंसेप्ट अगर हमें जो उन शागिर्दों को सिखाना है जो अब तहकीक की मंजिल को पहुँच गए हैं, जो खुद इल्म के बारे में सोचना चाहते हैं, तलाश करना चाहते हैं, तो उनको हम कहेंगे, मौला रूमी फरमाते उनको हम कहेंगे मोहब्बत मरियम जैसी है और हम में से हर एक के पास मसीह है। यानी मरियम ने कंवारी होकर वो मसीह को अल्लाह की जिम्मेदारी समझकर लिए फिर रही थी और हालत उनकी ऐसी थी, वो कहती थी नस्यम मनसिया, काश इससे पहले भी मट्टी बन चुकी होती मैं। लेकिन ये अल्लाह का ट्रस्ट था उसका, वो क्योंकि वो दोनों वो मरियम अलैहिस्सलाम और उनका बेटा जो था आयतल लिल आलमीन, वो पूरी दुनिया के लिए निशानी बनने वाले, ये ट्रस्ट लेकर वो चल रही थी। यानी मोहब्बत, यहाँ से मोहब्बत की दूसरी तशरीह, चूँकि आयाम चल रहे हैं रबीउल अव्वल के जी। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुल्लाह फअतूनी युहबिबकुमुल्लाह, इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। इनसे कहिए कि अगर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहिए अगर आप अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं तो मेरी इत्बा कीजिए। यानी अल्लाह से मोहब्बत की राह मेरी इत्बा में से, यानी इसका रास्ता मेरी इत्बा में है, वो आप मुझे फॉलो कीजिए तो अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करेगा। तो इस तरह से ये जो उस्ताद और शागिर्द का जो ताल्लुक़ है ये इसी पर, यानी उस्ताद इसमें इस काबिल होना चाहिए कि वो इसमें देख सके कि इसमें कौन सी सलाहियत छुपी हुई है। तो इसी वजह से अगर आप इजाज़त दें तो ललदद ने इस बारे में कहा जी। तो वो फरमाती हैं यानी मुडिस ज्ञानश कथनो वंजी, मुडिस ज्ञानश कथनो वंजे गोरस खार दिन रवि दो, खरस गोर दिन रवि दो।
सिक शार्टस फल्लो वैजे राविर जन कुम याजन तील। यानी वो कहती हैं कि ये जो अगेन यहाँ पर ललदत ये नहीं कह रहे हैं कोई कुंद जहन है, नो वो ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि इसकी लेवल्स होती है, इल्म ज्ञान देने की लेवल्स होती है। आप हर एक को एक किस्म का ज्ञान इल्म नहीं दे सकते, और तलब भी होनी चाहिए, तलब भी वहाँ से तलब भी होनी चाहिए ना। और यहाँ से अगर आप एक गधे की एक खास ग़िज़ा होती है, वो भी अल्लाह की क्रिएशन है, लेकिन गोर गोर मुफीद की ठीक इथे पठन सिक शार्टस फल वाल जमींदार पता क्या यी वावन तब नसन उस्ताद जमींदार तमिस पता राविर जन कुम याजन तील सत या गेव सत गछ कुलचि ठीक मजदार बकर कन गछ ठीक सही, मगर कुम तथ पई वना अगर तथ आस कह चीज आवन तथ कर तील की। आपने बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दी ये ललदत की इस वाक़ में, शुक में, ये ललदत के वाक़ ही होते हैं। तो इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे नाज़रीन। एक छोटे से वक्फे के लिए यहाँ पे हमें रुकना है, और वक्फे के उस पार जब हम आएंगे तो आज के हमारे जो मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन यत्तू साहब, इनके साथ सिलसिला कलाम जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जी नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। आज के जो ख़ास मेहमान हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए ये हैं डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन यत्तू साहब। ये जनाब हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इस्लामिक स्टडीज़ और अपने फ़राइज़ अभी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुगा में लोलाब में अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्टूडेंट और टीचर रिलेशन मुतलिक कत करें कि यह क्युत गो वस्ताद आसन, यह पछान जी स्टूडेंट्स खतर क्या बेहतर अजकिस दौरस मज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रश दौर, बच्चन पे जिम्मेदारी वारिया आसान, अलग अलग तरीक़ होमवर्क आसान या बाकी रिसर्च पेपर्स, बच्चे कित पट हेक पन्निस पानस समझित या अत तहकीकिस मैदानस मज पन तथ वन सबकत हासिल कर अमि खतर क्या पज अजकिस बच्चस कर ताकि सह सु तलब हासिल कर जन ब्रहमन अयामन मज पे आलिम दीन ब्रोह कुन या बाकी रिसर्चर या साइंटिस्ट ब्रोह कुन। सवाल इत पे बच्चस गमिस एप्टिट्यूड गड़ अमिस यानी टीचर वुच यह क्या हेकि करित, यह क्या हेकि हासिल करित। तो बेच पत अकिस लेवल पे यम साथ यह स्टूडेंट वातान वह अमिस तहकीक कर, तहकीक मतलब गो अमिस हक तलाश कर, तथ रिसर्च वन। तो अत नसन गमिस गोड़ आसन तहयुर, यानी अमिस गि यह कायनात हैरान कर। अरबिस मज शेर कुल मा हुआ फिल कौनी वहमुन औ ख्याल औ अकूसन फिल मराया औ जिलाल। यानी इस यह पूर दुनिया यह मा वहम या ख्याल, नत मा यम शीशन मज आयनस मज शक्ल, नत मा यह ख्याल योत, नत मा छाई, नत कहीं ये साई तो नहीं है, यह हैरानगी हज कत। यानी रिसर्चर गज गोड़ हैरान गसन, यही तहयुर इसको तअक्कुल की तरफ ले जाएगा, तफक्कुर की तरफ ले जाएगा। बहुत खूब। इस बारे में ललदत भी कहती हैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें। जी। ललदत वनान कि हचू हारिंज पेचू कान गोम अबक छान प्योम यथ राजदानी मंजबाग बाजरस कुल फुरुस वान गोम तीर्थुरुस पान गोम कुस मालिजानी। यानी मैं कहता हूँ वहाँ पर अरबी में था तहयुर, यानी हैरानगी, ये कायनात हैरान करेगी इस रिसर्चर को, तब ये रिसर्च की तरफ जाएगा।
वनी वन कि अगर से कहीं नेचुरल साइंस में सह क्या हैरान गए, वो भी हैरान ही होता है, वो भी हैरान ही होता है, तभी वो नई दुनिया दरियाफ्त तजस्सुस होता है, तजस्सुस उसके अंदर होता है। सही। तो ये तहय्युर उसमें जब पैदा होगा तब वो तहकीक करने की कोशिश करेगा, कोई नई समझ ढूंढने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप ये तहय्युर जो होता है ये आला दिमाग जो होते हैं जो फिर रिसर्च की तरफ जाते हैं या दुनिया को कोई नई चीज़ देते हैं, जैसे आपने अभी कहा कोई ईजाद करते हैं, वो ईजाद बहरहाल वो मटेरियल साइंस में भी नहीं होती है, वो कोई नया ख्याल भी हो सकता है, नई थ्योरी भी हो सकती है जिस पर आगे चलकर लोग चलते हैं। तो ये जब सामने आप हैरान हो जाएंगे, इस तहय्युर में पूरी दुनिया एक जैसी है, चाहे किसी मज़हब का भी फॉलोवर हो। ये जिन ख्यालात का जिक्र ललदेद 14वीं सदी में करती थी, 6ठी सदी में ऑलमोस्ट उन्हीं ख्यालात का जिक्र करते हैं एक, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से पहले जी ज़ैद बिन अमर बिन नफील, अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस नहीं हुए थे, तो वो थे सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के करीबी अजदाद में से एक जी। लेकिन वो तलाश कर रहे थे कि मेरा खुदा कौन होना चाहिए। फिर वो इस सही बुखारी में इसका जिक्र है, इसको शाह दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मैग्नम ओपस हुज्जतुल्लाह बालिगा में लाया है, यानी जो उन्होंने मज़हब की हिकमत पर किताब लिखी है हुज्जतुल्लाह बालिगा। तो इस चीज़ को यानी ज़ैद बिन अमर बिन नफील उस वक्त डिक्लेयर करते हैं कि जब मैंने गौर फिक्र किया जी, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि लात और उज़ा खुदा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर तकरीबन 14वीं सदी में ललदत भी इन्हीं ख्यालात का इजहार कर, इसका मतलब है ये तहय्युर और तफक्कुर जो होता है ये आफाकी होता है, ये आलमगीर होता है। तो उस्ताद इस लेवल को, इस सतह को स्टूडेंट में, शागिर्द में देखने की कोशिश करता है, फिर वो जान जाता है। जब वो उस्ताद होता है तो जान जाता है। वाकई में जब अच्छे उस्ताद हमारे पास हो, जब आप जैसे मौलम हमारे पास हो हमारे कॉलेज में, तो इस चीज़ की कमी, और हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि वाकई में कि जो तालीमी निज़ाम है उसमें ये कमी महसूस न हो और बेहतरी आ जाए। खैर, आपसे जो ये कलाम है बहुत कुछ और बातें करनी, हमारे पास वक्त है तो अभी प्रोग्राम में बचा, लेकिन यहाँ पर एक और ज़िम्मेदारी बनती है। नाज़रीन मोहतरम, एक प्रोमो आपके सामने रखते हैं सिंगिंग स्टार ऑफ J&K के नाम से, और उसके बाद जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। तुम्हारा भी कुछ अंदाज बदला हुआ है फरहाना, तुम्हारा भी अंदाज हो रहा है शायराना। वो बोल मिट्टी दिया बावे आवे सानू तेरे दुखान ढोले आवे मेरा सोना माही। मचा दी धूम मचा दी धूम मचा दी धूम। ओ लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वाल। आपका गला ठीक है, आपका सॉन्ग सिलेक्शन ठीक नहीं है। पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया। अपना रेंज देखना चाहिए, मेरे को क्या सूट होता है, ठीक है। जो 8 कंटेस्टेंट्स डेंजर जोन में है, स्टेज पे आ चुके हैं। आप लोग बिछड़ नहीं रहे हैं, आप लोग भी सिंगिंग स्टार ऑफ J&K हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। हमारे साथ डॉक्टर अल्ताफ हुसैन यत्तू साहब हैं, एक उस्ताद हैं, और उस्ताद के हवाले से एक शेर मुझे याद आया कि उस्ताद को रुतबा मिला कागज़ कलम तकदीर में। उस्ताद को रुतबा मिला कागज़ कलम तकदीर में, चाक की नकदी मिली तख्ते सिया जागीर में। ये मुझे याद आ रहा है कि जब मैं 6th 7th 8th में पढ़ रहा था, शायद 7वीं में, तब हमारे एक उस्ताद ने ये बोर्ड पे लिखा था, और जिस तरह आपने कब नक्श का कहा ना, बराबर याद जन बोर्ड ब्रोट कन वनस। तो ये जो ऐसी मेमोरीज हैं, इसके लिए उस्ताद भी हमें वो चाहिए जो
جن کی شخصیت میں اثر ہو. اور بچے کا جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اس میں طلب ہونی چاہیے. یہ طلب اور ان کے پاس یہ وہ سب ان کی طلب کو, ان کی تشنگی کو دور کرنے کا سامان ہوتا ہے استاد کے پاس. ابھی جو ماحول ہے آج کا, اور ہم نے استادوں کے استاد اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا, ان کے فرمودات کا ذکر کیا, آپ نے کافی دفعہ جو ہے ذکر کیا. بحیثیت مسلمان علم کا حصول ہمارے لیے فرض ہے. اور ابھی جو تعلیمی ماحول ہے اور یہ جو پیڈاگوجیاں چینج ہو رہی ہیں, انٹرنیٹ کا اس میں ابھی دورہ ہے, تو ان حالات میں یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے آپ آج کے اساتذہ سے, آج کے اسٹوڈنٹس سے, آج کے سماج سے, آج کے اس ماحول سے, جس ماحول میں انسان پڑھتا ہے, ماحول سے بھی انسان پڑھتا ہے, آپ نصیحتاً کیا کہیں گے اور کس طرح سے رہنمائی کریں گے ان سب کی اپنی علمی بصارت کی روشنی میں؟ استاد سے چونکہ حالانکہ ذمہ داری اگر والدین کی بھی ہے, بچوں کی بھی ہے, لیکن بیچ میں ہے استاد, سب سے بڑی ذمہ داری استاد کی ہے. اس لیے میں استاد سے میں نہیں کہوں گا بلکہ خدا نے کہا ہے جی کہ میں آیتیں وہ پڑھنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. میں اس پر زور دینا چاہتا ہوں. جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے, رب کائنات اکرم ہے, کرم کرنے والے. کرم جو نکلا ہے, کرم مانے وہ خود بھی تکریم والا ہے, اور وہی اسی کرم میں سے کرم بخشا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو. وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ. اس کا مطلب یہ ہے جو ہے, یہ جو اقرا جو ہے, تعلیم جو ہے, علم جو ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے سے وہ انسان کو کرم بخشتا ہے, تکریم بخشتا ہے, عزت بخشتا ہے. اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ الذی علم بالقلم. اس کا جو انسٹرومنٹ آف یعنی تکریم عطا کرنے کا جو آلہ ہے وہ قلم ہے. اس حساب سے یہ جو علم ہے یا علم کی ترسیل جو ہے, تعلیم جو ہے, یہ بن جاتی ہے امانت. یعنی رب تعالیٰ نے یہ امانت عطا کی. علم والے کے پاس امانت اس طرح سے ہے کہ یہی علم فرق کرتا ہے, امتیاز قائم کرتا ہے انسانوں کے درمیان اور باقی مخلوقات کے درمیان. صحیح. کیونکہ جو آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی, وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. میں نے ان کو سواریاں بخشی, یعنی خشکی پر بھی اور تری پر بھی. آپ پر اب یہ سواریاں بخشنا کیا ہے؟ یہ طریقہ سکھایا گیا ہے کہ آپ یہ سواریاں کیسے حاصل کرو گے. تو اس وقت انسان نے اس کو یہ سواری کے لیے استعمال کیا, گھوڑے کو, وہ بھی ایک ٹیکنیک تھی, تکنیکی کام تھا. آگے چل کر اس نے نئی دنیایں دریافت کی, وہ بھی سواریاں ہی ہے. تو مجھے کہنا یہ ہے کہ یہ جو علم ہے, یہ جو تعلیم کا طریقہ ہے, یعنی ہم حصہ دار بن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو تکریم بخشتا ہے انسان کو اور انسانیت کو, ہم اس میں حصہ دار بنے. اس لیے یہ امانت ہے, اور یہ امانت ہی نہیں, یہ پھر عبادت بھی بن جاتی ہے. بالکل. اور آپ نے بہت اس خوبصورتی سے اس کا جو خاتمہ کیا کہ یہ جو پیشہ ہے یہ ایک پیغمبرانہ پیشہ ہے, اس لیے یہ امانت ہے, اور اس امانت کو ان لوگوں تک پہنچانا ہے جن کو اس کی طلب ہے. وہ طلب میرے خیال سے ہم ایسے آئیڈیالوجیکلی کہہ رہے ہیں کہ ٹیچر چکر آپ تمشید کے کارو اس کے کارو, لیکن وہ پریکٹیکلی پھر کلاس روم میں دیکھنا ہے ٹیچر کو, اور ذریعہ معاش ہے یہ, ایسا ہم نہیں کہیں گے کہ نہیں کرنا ہے اس کے ساتھ, لیکن جو اس سے بڑی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک قوم کی تخلیق کرتے ہیں, ایک نئی نسل کو متاثر کرتے ہیں, اور اس نسل کو آگے چل کے کیا کرنا ہے وہ اس کا جو تہیہ ہے وہ ٹیچر ہی کرتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف آنے کے لیے بہت بہت شکریہ. اور ناظرین تہند تہ سٹھا سٹھا شکریہ. أڑ بج پہ 9 بجن تام پرٛٮ۪تھ دۄہ سپدان پیش گُڈ مارنِنٛگ جے اینڈ کے. آز کوٚر اَسہِ پیش مےٚ تہٕ اشفاقن, پگہہ آسن سٲنۍ بیٚیہِ زٕ سٲتھی یِم زن یہِ پروگرام تۄہہِ تام واتناون. دِیِو أزکِس اجازت, پگہہ سپدِ بیٚیہِ مُلاقات. السلام علیکم.